Hello everyone, I welcome you all once again to the Society of Free Educators. This is session number 30 from the class of Communication Skills, Learning and Development. So once again, Assalamu alaikum. Let's have a quick recap of what we have learned earlier. Earlier we understood uh, few words from our news section, that is Brazilian trucker strike, and then we understood a new phrase that is called live in a bubble. Actually, it's an older phrase, but the new meaning, the 20th century context of this meaning is when someone is unable to accept any new ideas, we call him he's living in a bubble. And then business English section, we understood the telephone manners and word root analysis of these words, and then we understood we started modifiers in grammar. So today we will understand modifiers. Uh, just give me 1 second. So today we will understand what are modifiers. चलो आज कम ही लोग हैं तो you guys have a better chance to participate. But before going to this misplaced modifier, हम पहले वाला देखते हैं आज क्या है. So let's start the class today with our news section. तो आज का जो न्यूज़ है that is related to oldest message in the world. अब ओल्डेस्ट मैसेज इन द वर्ल्ड से पता लगता है कि बहुत सारे मैसेजेस हैं जो ऑलरेडी ओल्डेस्ट अवेलेबल हैं टेक्स्ट में, बट दिस टुडे वी विल अंडरस्टैंड और we will read a story about an Australian beach where a lady was walking and she found a bottle, and in that bottle there was a message on the paper, uh, rolled inside it, and that was supposed to be 2000 or 3000 year old message, and this is considered to be the oldest message inside a bottle. So जो आज का न्यूज सेक्शन है that is world's oldest message inside the bottle. ऑस्ट्रेलिया की ये कहानी है, रिसेंटली हुआ है. सो a message in a bottle dating back to 1880s has been found on an Australian beach. तो इस न्यूज सेक्शन को कौन पढ़ेगा आप में से आज? इरफाना, आप पढ़ लोगे या नवल या नजाक? देखो आज बहुत कम लोग हैं, सो पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन. नजाकत, आप पढ़ोगे इसको? कोई भी नहीं पढ़ेगा आप में से? मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ नवल, आप पढ़ लो इस सेक्शन को, तो वी विल कंटिन्यू. एंड दोस्त हु आर नॉट रीडिंग इट, just listen to what Naval is saying very carefully, because there will be question at the end of this section which is most related to this section. So Naval, please go ahead. A message in a bottle dating back to 1880 has been found on an Australian beach. What's thought to be the world's oldest message in a bottle has been found in Western Australia. The discovery was made by a woman working on a beach north of Perth, but far from sending out shows, the note inside was part of a German scientific study carried out in 1886. Despite the reduction of fuel prices by the government, तो ये बस यहीं तक, कोई जो ट्रकर स्ट्राइक का पीछे वाला आ गया है. तो uh, अभी क्या है इस स्टोरी का, ये ऑस्ट्रेलिया में एक पर्थ के पास एक बीच है, नॉर्थ ऑफ पर्थ yes, पे, जिसमें एक yes, बॉटल मिली है. एक लेडी थी, वो रेगुलरली वॉक करने जाती थी वहां, और पानी की लहरों के साथ तैरती हुई उसको एक बॉटल मिल गई थी वहां पर बीच पर, yes, sir. जिसमें उसको एक कागज का टुकड़ा मिला था, जिसको मोस्टली पहले लोग सोचते थे कि ये हेल्प के लिए मैसेज है, कहीं खो गए तो फिर बॉटल में ऐसे फेंक कर छोड़ दिया. तो एसओएस मोस्टली हेल्प के लिए लिखा जाता है.
लेकिन बाद में पता लगा कि ये 1886 में जर्मनी में एक साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक स्टडी हुई थी और ये उसी का एक हिस्सा था जो इस बॉटल में था, और इसको ओल्डेस्ट मैसेज इनसाइड अ बॉटल कंसीडर किया जाता है अभी। सो आई होप सबने पढ़ लिया इसको। कमिंग टू द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फुल फॉर्म ऑफ एसओएस, तो एसओएस का फुल फॉर्म होता क्या है? एसओएस एक एक्रोनिम है जो इस्तेमाल होता है हेल्प के लिए। आप में से किसी को मालूम है? No, चलो मैं बता दूं। एसओएस को आजकल लोग मोस्टली इसका फुल फॉर्म सोचते हैं सेव अवर सोल्स या सेंड अवर सकर सॉकर या सेव अवर शिप, इस तरह से। लेकिन इसका इस तरह से कोई फुल फॉर्म नहीं है। 1908 में एक इंटरनेशनल मॉर्स कोड डिजाइन किया गया था डिस्ट्रेस सिग्नल के लिए। डिस्ट्रेस सिग्नल के मतलब एक ऐसा सिग्नल जो ये बता दे कि हाँ मेरे को मदद चाहिए। तो जब भी कोई एसओएस का सिग्नल दे, समझ लेना कि उसकी जान पर बात आई हुई है और उसको मदद चाहिए। इस वक्त वो अपनी मदद नहीं कर पा रहा है, वो उसको मदद चाहिए। और ये मेरीटाइम रेडियो सिस्टम का एक मॉर्स कोड था। अब मॉर्स कोड क्या होते हैं? एक मशीन थी जो मॉर्स कोड जनरेट करती थी बीप्स की फॉर्म में। पुराने वक्त में व्हाट्सएप और फेसबुक और मोबाइल फोन से पहले वायरलेसली बात करने का जरिया कोई था नहीं, और टेलीफोन्स भी इतने पॉपुलर नहीं थे उस वक्त। जो भी टेलीफोन्स थे वो फॉल्टी थे, इतने एडवांस लैंडलाइंस नहीं थे जो हम लोग ने देखे हैं हमारे बचपन में। उस टाइम बीप्स के थ्रू मैसेज भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह, और वो जो मशीन थी वो एक मॉर्स कोड जनरेटर मशीन होती थी। उसी में एक सिग्नल इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसको कहते हैं हम इस सिग्नल को हम कहते हैं डिस्ट्रेस सिग्नल। सो दिस इज व्हाट द मोर्स कोड that was generated prior to 1950s or 1908 specifically is SOS. तो आई होप ये सबको समझ आ गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज ए न्यू मीनिंग टू एन ओल्ड वर्ड। अब वर्ड है फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन द कर्व एक्चुअली क्या होता है? जब भी आप कोई ग्राफ देखते हो उसकी पीक को हम कहते हैं ये कर्व है, और जितनी ज्यादा पीक उसकी फ्लैट रहे इसका मतलब है वो उतना सैचुरेटेड है, उसमें उतना कम चेंज आ रहा है। तो ट्रेडिशनली फ्लैटन द कर्व का जो मीनिंग था वो था टू रिड्यूस द पीक ऑफ ए ग्राफ और चार्ट। बट नए कॉन्टेक्स्ट में जो अभी पैंडेमिक चल रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में है रिड्यूसिंग द इफेक्ट या रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ समथिंग या रिड्यूस द रेट ऑफ समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं फ्लैटन द कर्व इस फ्रेज को। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स टू ट्राई एंड फ्लैटन द कर्व। तो गवर्नमेंट ने फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स इंट्रोड्यूस किए हैं कर्व को फ्लैट करने में। अब यहाँ पर कर्व को फ्लैट करने में का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक ग्राफ है और उसका आपको पीक फ्लैट करना है। यहाँ पर मतलब है कि नंबर ऑफ केसेस कम करने हैं। सेकेंड इसका देखते हैं हम एग्जांपल, वी नीड टू फ्लैटन द कर्व टू प्रिवेंट न्यू एडमिशंस इनटू हॉस्पिटल। अगेन इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका मीनिंग है कि हमें इतना प्रिकॉशन लेना चाहिए कि नंबर ऑफ केसेस अपने आप कम हो जाए ताकि हॉस्पिटल्स में जो एडमिशन है वो प्रिवेंट की जा सके। एंड देन फ्लैटन द कर्व इज वाइटल टू हेल्प सेव लाइफ। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल में फ्लैटन द कर्व मतलब है कि रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस पैंडेमिक। कि पैंडेमिक जिस रेट से फैल रहा है उसको कम करने का जरूर स्टेप जरूरी है लोगों की जान बचाने के लिए। So I hope you clear. Is there anyone who wants to ask a question regarding this? चलो हम आगे जाते हैं इन अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज बिजनेस इंग्लिश। इसमें हम आज लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज फॉर रिफ्यूजिंग ए रिक्वेस्ट। अब लैंग्वेज फॉर रिफ्यूजिंग ए रिक्वेस्ट और लैंग्वेज फॉर रिफ्यूजिंग ए गिफ्ट या रिफ्यूजिंग एन ऑनर, ये बहुत डिफरेंट है आपस में। मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करना मतलब किसी भी एक्टिविटी को रिफ्यूज करना। ऐसा नहीं है। Request is specifically when someone asks you to do something or when someone asks you a favor. अगर कोई बंदा आपको आकर एक आप
आपसे कोई चीज रिक्वेस्ट करता है, कोई फेवर मांगता है या कोई डाटा मांगता है, तो उसको हम बोलते हैं ये एक रिक्वेस्ट है। लेकिन ऑर्डर अगर आपको कोई देता है सो उसकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होगी। हम इसका देखते हैं। थैंक यू फॉर योर ऑफर बट आई एम रियली सॉरी, आई वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो पहली लाइन तो ये है, ये बहुत सिंपल लाइन है कि शुक्रिया आपने मुझे ये चीज ऑफर की, मगर मैं माफी चाहता हूँ, मैं ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी लाइन है, आई एम अफ्रेड इट इज अगेंस्ट द कंपनी पॉलिसीज टू गिव डाटा टू यू डायरेक्टली विदाउट ऑथेंटिकेशन। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। थर्ड है, विद रिग्रेट आई एम गोइंग टू हैव टू से नो टू द रिक्वेस्ट दैट यू आर मेकिंग टू मी राइट नाउ। तो विद रिक्वेस्ट मतलब विद रिग्रेट मतलब अफसोस के साथ मुझे आपकी रिक्वेस्ट को ना कहना पड़ेगा। एक और है इसमें, आई एम रियली सॉरी आई डू नॉट थिंक आई कैन एक्सेप्ट दैट। अब इस इस फ्रेज को भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी ये रिक्वेस्ट जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या फिर मैं आपने जो मुझे काम बताया मैं उसको एंटरटेन नहीं कर सकता। वही चीज आगे आगे, अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन योर रिक्वेस्ट, it won't be appropriate for me to give you this data. It won't be appropriate for me to give you the emails of all the clients from this company. तो इस तरह से आप एक रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर सकते हो, मना कर सकते हो। so, किसी को पूछना है कुछ इसके बारे में? Is there anyone who wants to ask something about these? चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड रूट एनालिसिस। तो फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे LOCU और LOQU, देन LUC, LUD या LUS एंड LUM। पहला वर्ड है LOQU और LOCU। अब लोकू जहां पर भी होता है ना, उसका मतलब होता है स्पीक, बोलना। एग्जाम्पल है इसकी, एलोक्वेंट, स्पीकिंग ब्यूटीफुली एंड फोर्सफुली। लोकेशियस, वेरी टॉकेटिव, जो बंदा ज्यादा बात करता है हम बोलते हैं ही इज वेरी लोकेशियस। एलो एलो एलोकुशन, एलोकुशन होता है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कि पब्लिक में कैसे बात करनी है। सबको क्लियर है ये? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज LUC। अब LUC जो होता है उसका मोस्टली मीनिंग लाइट होता है। पहला है एलुसिडेट। एलुसिडेट इज टू एक्सप्लेन या थ्रो लाइट ऑन। अब यहाँ पर लाइट ऑन मतलब ये नहीं है कि आप टॉर्च से या बल्ब से रोशनी डाल रहे हो किसी चीज पे। एलुसिडेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो, उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में किसी को बताते हो। इसका एक एग्जांपल है, आई एम एलुसिडेटिंग दिस पैराग्राफ टू यू। तो इसका मतलब हुआ कि मैं इस पैराग्राफ के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, डिटेल्स बता रहा हूँ। दूसरा है लूसिड। लूसिड का मतलब है इजिली अंडरस्टूड या गिविंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जो इसका मीनिंग है गिविंग ऑफ लाइट, वो फिजिकल लाइट देना भी है और विजडम या नॉलेज देना भी है। और फिर ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को थ्रू अपने थ्रू अलो करते हैं, अलोइंग लाइट थ्रू। जैसे आप अगर एक कागज के ऊपर तेल मल दोगे तो उसके आर पार लाइट जाना शुरू हो जाएगी। दैट इज ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नाउ क्लियर है सबको? थर्ड है LUD या LUS। इसका मतलब होता है टू प्ले। तो प्रिलूड होता है इंट्रोडक्शन टू द मेजर परफॉर्मेंस। देखो प्रिलूड कहाँ पर यूज होता है, जैसे आपने देखा स्टेजेस पे या फिर जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं बॉलीवुड के या हॉलीवुड के, तो अक्सर एक बड़ा एक्टर जब आता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी और बहुत ग्रैंड होती है। उस टाइम हम बोलते हैं कि द एंकर हैज प्रिलूडेड द परफॉर्मेंस, द मेन परफॉर्मेंस ऑफ टुडे। तो जब भी कोई बंदा एक मेजर परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करे या इंट्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड प्रिलूड। इल्यूजन, इल्यूजन होता है मिसलीडिंग ऑप्टिकल इमेज और इंप्रेशन, बहकावा जिसको हम कहते हैं। और डिल्यूड होता है टू मिसलीड या डिसीव। अब मिस अगर मान लीजिए मुझसे कोई रास्ता पूछता है किसी जगह का और मैं उसको गलत रास्ता बताता हूँ, तो मैं उसको डिल्यूड कर रहा हूँ, मैं उसको मिसलीड कर रहा हूँ, डिसीव कर रहा हूँ। या फिर मैं दो दोस्तों के बीच में अगर लड़ाई लगवा रहा हूँ अपनी बातें करके,
इधर की बात उधर करके, तो मैं उनको डिल्यूड कर रहा हूँ, मैं उनको मिसलीड या डिसीव कर रहा हूँ। क्लियर हुआ सबको? चलो, सो द नेक्स्ट इज LUM। अब ये जो वर्ड है LUM, ये भी लाइट से रिलेटेड है। सो इल्यूमिनेट, टू फिल विद लाइट। ल्यूमन लाइट का एक मेजरिंग यूनिट है। तो जैसे मैं एक बंद कमरा है जिसमें अंधेरा में बल्ब ऑन करता हूँ और पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, दिस इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन ऑफ द रूम। और उस बल्ब की पावर कितनी है ये मुझे उसके ल्यूमन्स बताते हैं। ल्यूमन्स लाइट को मेजर करने का एक यूनिट है। सबको क्लियर है ये, या किसी को पूछना है इसमें कुछ? इज देयर एनीवन हु वांट्स टू आस्क समथिंग अबाउट दिस? चलो, वी विल गो टू द ग्रामर सेक्शन नाउ। अब ग्रामर सेक्शन में जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मॉडिफायर्स होते हैं। सो व्हाट आर मॉडिफायर्स? मॉडिफायर्स आर दोज वर्ड्स और दोज सेट ऑफ वर्ड्स और क्लॉजेस व्हिच मॉडिफाई other words. But the point is modifiers give extra clarity or extra explanation to other words, first thing. And second thing is there are two type of modifiers. The first is misplaced modifiers, and the second one is dangled modifier. Just give me 1 second, there is someone in the chat. Okay, understood, thank you. So अब misplaced और dangled modifiers हमने last time पढ़ा था कि misplaced modifiers हमेशा nouns के साथ होते हैं और dangled modifiers verbs के साथ भी होते हैं। लेकिन आज हम misplaced modifiers को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, I only eat samosas। इसका ट्रांसलेशन कौन बताएगा मेरे को? आप में से किसी एक को मुझे इसका ट्रांसलेशन बताना पड़ेगा। रितेश, नवल, इरफाना या उरूस, कोई एक मुझे इसका ट्रांसलेशन बता दो। मैं सिर्फ समोसा खाता हूँ। नहीं, ये गलत है, ये नहीं है। कोई और? मैं आपको बताऊं, देखो यही है। मैंने कहा था ना आपको, आप जब मॉडिफायर्स पढ़ोगे आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये हम अक्सर ये गलतियां करते हैं। हम मॉडिफायर कहीं और लगाना होता है और कहीं और लगा देते हैं, उससे सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाता है। और कोई है जो इसका ट्रांसलेशन बता? गूगल ट्रांसलेट कर लो अगर आपको दिक्कत आ रही है करने में, तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं अकेला समोसा खा रहा हूँ। हाँ, मैं अकेले नहीं, इसका मतलब एक्चुअली में इसका कॉन्टेक्स्ट है कि मैं बस समोसे ही खा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं सारा दिन समोसे खाता रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं जागता हूँ, सोता हूँ, ना मैं उठता हूँ, बैठता हूँ। जो मेरा काम है समोसे खाना। आई ओनली ईट समोसास, मतलब। हाँ बताओ। मैं हमेशा समोसा खाता हूँ। हाँ, ये नवल ने बहुत करेक्ट बोला। नवल आप ही हो ना? हाँ, नवल। हाँ, ये क्यों नवल? सो इसका एक्चुअल अगर ओनली मैं पहले यूज कर रहा हूँ ना, तो आई ओनली ईट समोसास मतलब मैं हमेशा समोसा खा रहा हूँ। तो मतलब मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं मुंह धो रहा हूँ, ना हाथ धो रहा हूँ, ना पानी पी रहा हूँ, ना चाय पी रहा हूँ, ना पराठे खा रहा हूँ, मैं सिर्फ समोसे खा रहा हूँ। काम वाम भी नहीं कर रहा हूँ कुछ, बस मैं उठाऊं बिस्तर से, समोसे खाना शुरू किया और मैं वैसे के वैसे ही सो जाऊंगा। सो दिस इज आई ओनली ईट समोसास। और अब यहाँ से आप हिसाब लगाओ कि आपने इस तरह के सेंटेंसेस कितने बोले होंगे लाइफ में, या कितने सुने होंगे लाइफ में। तो एक देखो, मैं थोड़ा इसको और डिटेल में जाता हूँ। ओनली जो है ये एक एडजेक्टिव है और ईट है वो एक वर्ब है। तो एडजेक्टिव क्या कर रहा है? ये एक वर्ब की क्वालिटी को बयान कर रहा है, पहली चीज यहाँ। जबकि ओनली जो है, अगर मेरे को इसको एज ए मॉडिफायर यूज करना है, तो इसको समोसास को एक्सप्लेन करना चाहिए था, ना कि वर्ब को। मॉडिफायर नाउन को एक्सप्लेन करेगा, वर्ब को नहीं। तो या एक तो ये चीज है। अब इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन क्या है? द ऑथर सीम्स टू सजेस्ट दैट द ओनली थिंग ही डज थ्रू आउट द डे इज ईटिंग। तो आई ओनली ईट समोसास मतलब और इस सेंटेंस से ऑथर ये समझा, ऐसा लगता है कि ऑथर ये समझा रहा है कि जो पूरे दिन में वो काम करता है वो है खाना, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ खाता है पूरे दिन में और खा भी समोसे रहा है। सो विच इज नॉट द इंटेंडेड आइडिया, जो कि एक्चुअली में इंटेंडेड आइडिया नहीं है। क्योंकि आप कभी नहीं बोलोगे कि यार मैं पूरा दिन खाता रहता हूँ। आप ये थोड़ी बोलोगे। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हो कि मैं पूरा दिन समोसे खाता हूँ, या मैं जब भी खाता हूँ तब मैं समोसे खाता हूँ। ये एक तो सेंटेंस ही है कि मैं जब भी खाता हूँ मैं समोसे खाता हूँ।
या मैं जब भी खाता हूँ मैं परांठे खाता हूँ, मुझे इतने पसंद है परांठे। लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं बनता कि मैं सारा दिन खाता हूँ समोसा, मैं सारा दिन खाता हूँ समोसा, या मैं सारा दिन सिर्फ समोसे खाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं उठता हूँ बैठता हूँ ना पानी वानी पीता हूँ। तो एक तो ये है। और एक्चुअल में ऑथर क्या कन्वे करना चाहता है, तो ऑथर एक्चुअली वांट्स टू कन्वे दैट व्हेनेवर ही ईट्स समोसाज ओनली। तो ये एक्चुअल इसका कन्वेइंग मैसेज है। द ऑथर इज एक्चुअली ट्राइंग टू से दैट ही ईट्स समोसाज ओनली व्हेनेवर ही ईट्स। वो जब भी खाता है तब वो समोसे खाता है। तो ये चीज क्लियर हुई सबको? मुझे पहले ये बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। मतलब ये समझ आया कि ओनली ईट से पहले, अगर वर्ब से पहले मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया और वो भी ईट के मामले में, तो सेंटेंस का पूरा सेंस चेंज हो गया, जबकि इंटेंशन ये नहीं थी। क्लियर है सबको ये? आई ओनली ईट समोसास क्यों गलत है? क्लियर हो गया सर। यस ओके। सर। अब यही चीज है मॉडिफायर। देखो, द एडजेक्टिव ओनली एक्ट्स एज ए मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हियर एज इट शुड मॉडिफाई द नाउन समोसास नॉट द वर्ब ईटिंग। अब ये जो एडजेक्टिव है ओनली, ये एक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। मतलब ये एक ऐसा मॉडिफायर है जो गलत जगह लग गया है, और इसको मॉडिफाई करना चाहिए था समोसास को, ना कि ईट को। ईट एक वर्ब है, समोसास एक नाउन है। और आई ओनली ईट समोसाज और दूसरा है सेंटेंस आई ईट समोसाज ओनली। अब इन दोनों की अगर आप गूगल ट्रांसलेशन करोगे ना, तो वो डिफरेंट आएगी। अगर उर्दू लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे तो लगभग सेम आएगी, क्योंकि उर्दू में दोनों चीजों को सेम वे से कहा जाता है। बट आप इसकी कोशिश करो हिंदी ट्रांसलेशन करने की, आपको डिफरेंस एक्चुअली में पता लगेगा। लेकिन उस पहले आप ये करो, मुझे आप ये बताओ इन दोनों में से सही कौन सा लग रहा है आपको? विच वन इज करेक्ट एंड विच वाज इनकरेक्ट? देखो, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है ये, इंटेंशनली एक उसमें से इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ऐसी बात कोई करता नहीं है। हमारी इंटेंशन ये नहीं होती कहने की कि मैं सारा दिन सिर्फ समोसे खाता हूँ और मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना मैं जागता हूँ ना मैं सोता हूँ ना मैं पानी वानी पीता हूँ। हाँ, लेकिन हमारी ये इंटेंशन जरूर होती है कि मैं जब भी खाता हूँ मैं समोसे खाता हूँ। तो इंटेंशनली एक चीज करेक्ट है, एक चीज इनकरेक्ट है। आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है? दूसरे वाला करेक्ट में है आई ईट ए समोसा ओनली, और इनकरेक्ट में है आई ओनली ईट ए समोसा। हाँ, ये सही है। ये एक मेरे ख्याल से रितेश आपने भी बोला है ना? रितेश और नवल ने। चलो थैंक यू रितेश। आपका नाम रितेश है या रितेश है? रितेश है, वो स्पेलिंग में राकेश है। अच्छा अच्छा, कोई इश्यूज, नो इश्यूज नो इश्यूज। सो रितेश यू आर वेरी करेक्ट एंड नवल यू आर आल्सो वेरी करेक्ट। तो अब हम देखते हैं इसकी डिटेल्स। आई ओनली ईट समोसास, हियर द ऑथर कन्वेज दैट द ओनली थिंग ही डज थ्रू आउट द डे इज ईटिंग समोसास, whereas आई ईट समोसास ओनली, हियर द ऑथर कन्वेज दैट व्हेनेवर ही ईट्स ही ईट्स समोसास। तो करेक्ट जो है वो ये है, आई ईट समोसाज ओनली, बिकॉज इसका जो इंटेंशन है या इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि मैं जब भी खाता हूँ मैं समोसा खाता हूँ। तो मतलब अगर वो दिन में 3 टाइम खाना खाएगा तो वो 3 के 3 टाइम समोसा ही खाएगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है आई ओनली ईट समोसा, इसका मतलब है कि मैं सारा दिन समोसा खाता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता हूँ, मैं ऑफिस भी नहीं जाता हूँ, मैं काम भी नहीं करता हूँ, मैं बस समोसा खाता हूँ। जो कि एक अनइंटेंडेड वे है बात कहने का, इसलिए ये इनकरेक्ट है। So this is incorrect and this is correct. I eat samosas only is very correct sentence. इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखते हैं, आई ओनली ईट समोसास, मैं केवल समोसा खाता हूँ, मैं और कुछ नहीं करता हूँ। समझ गए? मैं केवल समोसा खाता हूँ, और उर्दू जिनको आती है उनके लिए मैं सिर्फ समोसे खाता हूँ। अब ये समझो, मैं सिर्फ समोसे खाता हूँ मतलब मैं और कुछ नहीं करता हूँ, मैं बस समोसे ही खाता हूँ, मैं खाना भी नहीं खाता हूँ, मैं बस समोसे खाता हूँ। मैं उठता हूँ, जागता हूँ, बेड पे बैठता हूँ, समोसे खाता हूँ। मेरी आंटी ने रखे होते समोसे मेरे साथ प्लेट में साइड पे मेरे तकिए के पास सुबह सुबह, और वो 1.5-2 दर्जन समोसे होते हैं। मैं सारा दिन समोसे खाता हूँ, फिर मैं वॉशरूम भी नहीं जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ, और फिर नेक्स्ट डे सेम साइकिल रिपीट होता है। इसका ये मतलब है। लेकिन आई ईट समोसा ओनली, इसका मतलब क्या है? मैं समोसे ही खाता हूँ। तो मैं समोसे ही खाता हूँ मतलब कि जब भी मैं खाना खाता हूँ मैं समोसे खाता हूँ। तो लेकिन उर्दू में फिर इसको सेम वे से लिखा जाएगा, मैं सिर्फ समोसे खाता हूँ, मैं और कुछ खाना पसंद नहीं करता हूँ। तो आई होप ये क्लियर है आप सबको। किसी को डाउट है इसमें कुछ?
चलो मैं थोड़ा और डिटेल्स में जाता हूँ अब मॉडिफायर की। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आप गलती से एक मॉडिफायर को गलत जगह ना रख दो। ऐसा ना हो कि सेंटेंस का पूरा मीनिंग या उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाए। इट इज रियली इंपॉर्टेंट वेयर यू पुट द मॉडिफायर, यू कैन एक्सीडेंटली चेंज द मीनिंग ऑफ एंटायर सेंटेंस इफ यू पुट द मॉडिफायर नेक्स्ट टू द रॉन्ग वर्ड। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि देखो सिर्फ ओनली हमने किसके आगे रखना है या किसके पीछे रखना है। एक्सीडेंटली अगर हम एक वर्ब के साथ रख देंगे तो उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा कि यार हम मिस्टेक कर बैठे हैं। अब ये ऐसी मिस्टेक्स हम जनरली इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है ना, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और वेस्ट बंगाल, ये जो एरियाज हैं, ये एक बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटेन की हुकूमत में रहे और वहां से इंग्लिश का जो एक मिला जुला असर है, मतलब हमने इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज एज ए सेकंड लैंग्वेज एक्सेप्ट तो किया, बट उसका जो एक्चुअल नेटिव कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको हमने अब भी अपनी तरह ही रखा है। इसलिए हमें ये नहीं पता लगता कि मॉडिफायर को कहाँ प्लेस करना है, और ये टॉपिक इसलिए जरूरी है, मॉडिफायर्स पढ़ना इसलिए जरूरी है। मोस्ट ऑफ ग्रामेटिकल स्कूल्स मॉडिफायर्स को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास को ज्वाइन करते हो, आइलेट्स के लिए करते हो या टोफल जैसे एग्जाम्स के लिए करते हो या जीआरई के लिए करते हो, तो उनको पता होता है कि बंदे ने बाहर जाना है और उसको एक ऐसी कंट्री या ऐसी स्टेट में जाना है जहाँ पर इंग्लिश एक नेटिव लैंग्वेज है, तो वो मॉडिफायर्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर हम समझते हैं कि यार ये 12th तक, 8 9 10th 11th 12th क्लास में तो हमने कभी पढ़ा नहीं, या हमने अपने ग्रेजुएशन के टाइम तो पढ़ा नहीं इंग्लिश में या कम्युनिकेशन स्किल्स में मॉडिफायर्स कोई नई चीज क्या आ गई। तो इतना सा फंडा है मॉडिफायर्स का कि इसको सही जगह रखना है, ऐसा ना हो कि हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही गलत कर दें। अब मिसप्लेस्ड लिमिटिंग मॉडिफायर्स, वो जो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स होते हैं वही लिमिटिंग मॉडिफायर्स होते हैं। लिमिटिंग मॉडिफायर्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये एक वर्ड की या एक सेंटेंस, एक क्लॉज के मीनिंग को लिमिट करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसकी एक हद तैयार करता है। जैसे वो पुराना फिर से समोसे वाले सेंटेंस पे आ जाते हैं हम लोग। जैसे ये सेंटेंस था ना, आई ईट समोसाज ओनली या आई ओनली ईट समोसाज, तो उसमें इंटेंशन जो थी वो हमारे खाने के तरीके को लिमिट करने की थी, कि हमारा जो लिमिट है खाने का वो सिर्फ समोसे है और उसके आगे नहीं है, हम समोसे के अलावा कुछ और नहीं खाते जब भी हम खाते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं मिसप्लेस्ड लिमिटिंग मॉडिफायर्स। These are the words that restrict or limit the meaning of the word or word group they modify। तो ये वो words होते हैं जो लिमिट करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं वर्ड्स के मीनिंग को या वर्ड ग्रुप के मीनिंग को। वर्ड ग्रुप मतलब क्लॉज के मीनिंग को, जिसको ये मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो ये है कुछ लिमिटिंग मॉडिफायर्स: ऑलमोस्ट, मेयरली, इवन, नियरली, एग्जैक्टली, ओनली, हार्डली, स्कार्सली, जस्ट और सिंपली। अब आपने कितने सारे इसमें एक वर्ड और है, वो है ऑलरेडी, AL और READY, ऑलरेडी। सो हमने कितने सारे इसमें से मॉडिफायर्स देखे हैं जो गलत वे में लोग अक्सर यूज करते हैं। मतलब हमें कोई ना कोई बोल ही देता है कि यार आई ओनली ईमेल्ड यू दिस मॉर्निंग। तो अब आई ओनली ईमेल्ड यू, इसका मतलब होता है कि मैं अब सारा दिन ईमेल ही करता रहता हूँ तुम्हें, मैं और कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन आई ईमेल्ड यू दिस मॉर्निंग ओनली, तो इसका मतलब है कि मैंने सुबह सुबह सबसे पहला काम तुम्हें ईमेल कर किया। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हम मॉडिफायर्स यूज करते हैं उसकी हम पोजीशन ध्यान में अगर नहीं रखे तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। और इसी से रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज है इसके बाद। पहले ये बताओ, आपको ये सारे समझ आ गए? मतलब मॉडिफायर्स क्या है और लिमिटिंग मॉडिफायर्स या मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स क्या है? आपको किसी को डाउट है इसमें कुछ? Is there anyone who wants to ask something? चैट में है कोई? नो, ओके, चलो रितेश मैं करता हूँ इसको आगे। सो आई ऑलमोस्ट वॉच द एंटायर मूवी एंड आई वॉच्ड ऑलमोस्ट द एंटायर मूवी। ये दो सेंटेंसेस हैं जो दिखने में भी एक जैसे हैं, और इसमें वही आई ईट समोसाज ओनली और आई ओनली ईट समोसाज वाला फर्क है। दूसरा सेंटेंस है आई ऑलमोस्ट एट द एंटायर चिकन एंड आई एट ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन। और तीसरा सेंटेंस है आफ्टर द वेडिंग एट हिज बैचलर्स पार्टी Amit told us that he would start behaving like a responsible adult
Or Amit told us at his bachelor's party that he would start behaving like a responsible adult after the wedding. अब before we go into details of these six sentences, or before we understand which was is correct and which was is incorrect, which one among these is incorrect, uh, could you please, any of you, let us know that which one, I mean, any of you can translate these sentences. Let's start with the first one. I almost watched the entire movie. तो इसका ट्रांसलेशन या इसका कॉन्टेक्स्ट या इसका मीनिंग क्या बनता है? आई ऑलमोस्ट वॉच द एंटायर मूवी या आई वॉच्ड ऑलमोस्ट द एंटायर मूवी. अब इन दोनों सेंटेंसेस में जो बोलने का इंटेंशन है वो है कि मैंने लगभग पूरी मूवी देख ली. मतलब एक मूवी शुरू हुई, मैंने मूवी ऑन की अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में या टीवी पे, और उस मूवी के खत्म होने तक मैं वहीं बैठा रहा. मैंने लगभग पूरी मूवी देख ली, बस लास्ट के 3-4 मिनट के सीन्स रह गए. तो ये इंटेंशन है इसको कहने की. बट इसमें से करेक्ट कौन सा है, या फिर इसकी ट्रांसलेशन क्या है? आप ट्रांसलेशन यूज गूगल ट्रांसलेटर इफ यू हैव एनी. Right is I watched almost the entire movie. The incorrect. I almost watched the entire movie. चलो इसका ट्रांसलेशन क्या है? इसका मतलब ये हुआ मतलब कि मैं ये मूवी जो मतलब लगभग मतलब पूरा देख चुका हूँ. हाँ ठीक है. सो आई ऑलमोस्ट वॉच द एंटायर मूवी इज, एक मूवी ऑलरेडी लगी हुई थी, ठीक है, तो मैं बाहर से आया और उसका एंडिंग चल रहा था, तो मैं ऑलमोस्ट एंटायर देख चुका हूँ. और आई वॉच ऑलमोस्ट द एंटायर मूवी इज, मैंने मूवी ऑन की, मैंने उसको पूरा स्टार्टिंग से देखना शुरू किया और एंड तक आते आते मैंने पूरी मूवी लगभग देख ली, बस लास्ट के 2-3 मिनट रह गए हैं. सो नवल इज एक्चुअली करेक्ट कि ये वाला इनकरेक्ट है और ये वाला करेक्ट है. अब आई ऑलमोस्ट एट द एंटायर चिकन और ये है आई एट ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन. इन दोनों में से करेक्ट कौन सा और इनकरेक्ट कौन सा है, और इनकी ट्रांसलेशन क्या है या इनकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन मैं आपको बता देता हूँ. अब बंदा ये कहना चाहता है कि मैंने मतलब वो एक पार्टी में गया था और वहां पर चिकन की डिशेस पड़ी थी बहुत सारी, और मैंने लगभग पूरा चिकन खा लिया. मतलब मैंने इतना खाना खा लिया कि वो एक पूरे चिकन के बराबर हो गया. अब इन दोनों की ट्रांसलेशन क्या है और इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? कौन बताएगा, इरफाना या उरुस? इन दोनों में की ट्रांसलेशन क्या है? सर वही प्रॉब्लम होगा, उर्दू में तो सेम ही आएंगी. हाँ, उर्दू में तो इसकी लिखावट में ट्रांसलेशन सेम आएगी, बट आप इसको समझा सकते हो. देखो, आई ऑलमोस्ट एट द एंटायर चिकन, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ. आप ना कभी भी, हाँ बताओ नवल प्लीज. Correct is I ate almost the entire chicken. हाँ हाँ Incorrect is almost the entire chicken. हाँ बिल्कुल सही है. मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ. आप किसी भी चीज को ऑलमोस्ट एट नहीं करते या ऑलमोस्ट ईट नहीं करते, ठीक है. आप ईट ऑलमोस्ट करते हो या आप एट ऑलमोस्ट करते हो. एट ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन इज करेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट. अब है क्या इसमें फर्क दोनों में? आई ऑलमोस्ट एट द एंटायर चिकन इज, इसका मतलब ये है कि देखो, इसका मतलब से पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ. आई ईट ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन मतलब मैंने इतना खाना खाया कि ये पूरे का पूरा चिकन बन गया. इतना मैं चिकन खा चुका हूँ कि अगर मैं हिसाब लगाऊं तो ये एक पूरा चिकन बनता है, ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन. लेकिन आई ऑलमोस्ट एट द एंटायर चिकन मतलब मैं एक पूरा का पूरा चिकन पड़ा हुआ था और मैं लगभग उसको खाने वाला था, लेकिन मेरे से खाया नहीं कुछ भी. तो यहाँ से समझ आया आपको क्या फर्क है? अगर ऑलमोस्ट में पहले लगा देता हूँ तो ऑलमोस्ट पहले लगाने से क्या हो गया कि चिकन मेरे सामने प्लेट में या एक डिश में पड़ा हुआ था, और मेरी इंटेंशन ये थी कि मैं वो पूरा का पूरा खा जाऊं, लेकिन मैंने जरा सा भी नहीं खाया. सो आई ऑलमोस्ट एट द एंटायर चिकन इज, मैं बस खाता खाता रह गया. मैं चिकन पूरा का पूरा खाता खाता रह गया, वो चिकन वहीं का वहीं है, मैंने खाया कुछ नहीं है. और आई ईट ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन या आई एट ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन इज, मैंने पूरा चिकन खाया, और अगर मैं उसका हिसाब लगाऊं कि ये कितना हुआ, ये एक पूरे चिकन के बराबर बनता है, एक पूरे चिकन के बराबर बनता है. सो नवल इज एक्चुअली करेक्ट. अब
आते हैं तीसरे सेंटेंस पे. आफ्टर द वेडिंग एट द बैचलर्स पार्टी अमित टोल्ड अस दैट he would start behaving like a responsible adult, or Amit told us at his bachelor's party that he would start behaving like a responsible adult after the wedding. अब इन दोनों में सही कौन सा है? देखो, अगर आप इस चीज को देखोगे ना, तो जब हम मॉडिफायर्स पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में, तो मैंने एक सेंटेंस बोला था कि she was unable to explain to her mom why she is getting married, या she was unable to explain why she was getting married to her mom. तो ये उस तरह की सिचुएशन है. अब है क्या, आफ्टर द वेडिंग, वेडिंग के बाद एट द बैचलर्स पार्टी, वेडिंग के बाद बैचलर्स पार्टी में अमित ने कहा, अमित टोल्ड अस दैट ही वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए रिस्पॉन्सिबल एडल्ट. तो इसका ट्रांसलेशन आप करोगे, ये आएगा कि शादी के बाद बैचलर्स पार्टी में अमित ने कहा कि वो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह बिहेव करेगा शादी के बाद. और इसका ट्रांसलेशन आएगा, अमित टोल्ड अस, अमित ने हमें कहा एट हिज बैचलर्स पार्टी, अपनी बैचलर्स पार्टी में, दैट ही वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए रिस्पॉन्सिबल एडल्ट आफ्टर द वेडिंग, कि वो अपनी शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा. तो इन दोनों में से सही कौन सा लगता है आपको? तो सेकंड वन सही लग रहा है सर. हाँ, सेकंड वन, एग्जैक्टली सेकंड वन सही है, बिकॉज फर्स्ट वन का तो मीनिंग ही बहुत डिफरेंट हो गया. हालांकि दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, दोनों का इंटेंशन भी एक ही जैसा है, और दोनों का ट्रांसलेशन भी लगभग एक जैसा है, बट देखो फर्क क्या पड़ा. आफ्टर द वेडिंग एट हिज बैचलर्स पार्टी, अब एट हिज बैचलर्स पार्टी एक इवेंट है, क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और आफ्टर द वेडिंग मॉडिफायर है. तो यहाँ पर मॉडिफायर हमने पहले लगा दिया, तो मतलब शादी के बाद बैचलर्स पार्टी में. तो बैचलर्स पार्टी हमेशा शादी से पहले होती है, शादी के बाद नहीं होती. एक बार आपकी शादी हो गई तो आप बैचलर नहीं हो, फिर आप एक मैरिड पर्सन हो, और मैरिड पर्सन बैचलर्स पार्टी नहीं दे सकता. ये सिंपल सी बात है. तो आफ्टर द वेडिंग एट हिज बैचलर्स पार्टी, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है कि शादी के बाद अपनी बैचलर्स पार्टी में अमित ने कहा कि वो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह बिहेव करेगा. ये बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है, बिकॉज इस सेंटेंस के हिसाब से शादी हो चुकी है और अब बैचलर्स पार्टी चल रही है. बट अगर हम इस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखें, ये कहता है कि अमित टोल्ड अस एट हिज बैचलर्स पार्टी, अमित ने अपनी बैचलर्स पार्टी में कहा that he would start behaving like a responsible adult after the wedding, कि वो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह बिहेव करने लगेगा अपनी शादी के बाद. तो अभी उसकी शादी हुई नहीं है और वो बैचलर्स पार्टी थ्रो कर रहा है. सो दिस वन इज एक्चुअली करेक्ट. तो अगर हम देखेंगे कि इनकरेक्ट कौन से हैं और करेक्ट कौन से हैं, तो हियर इज द लिस्ट. आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज लेट मी नो राइट नाउ. वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट विद अस. किसी को पूछना है कुछ इसमें? और जिसके लिए ये टॉपिक मॉडिफायर्स ने, मैं बोलूंगा प्लीज एक बार लास्ट सेशन देख लो, उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था मॉडिफायर्स का, कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं और दो तरह के मॉडिफायर्स क्या हैं, और ये उन दो में से एक तरह का मॉडिफायर है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा डैंगल्ड मॉडिफायर. कि डैंगल्ड मॉडिफायर क्या होता है. मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का पहचानने का एक ही तरीका है कि एक तो इसकी लोकेशन जो होगी वो थोड़ा सा गड़बड़ होगी, और आप समझ जाओगे कि यार ये, जैसे ये है ना, आई ऑलमोस्ट एट द एंटायर चिकन, और आई एट ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन. सो ऑलमोस्ट इसमें एक मॉडिफायर है, और मॉडिफायर जो है वो एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एक नाउन की प्रॉपर्टीज या नाउन की एक्सप्लेनेशन को लिमिट या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. सो यहाँ से आप समझ जाओगे कि ये एक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है. सिंपल सा फंडा, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर हमेशा एक नाउन के साथ होगा, वो वर्ब के साथ नहीं होगा. और दूसरी चीज, ऑब्वियसली वो एक मॉडिफायर है, तो उसकी पोजीशन पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देगी, चाहे उसकी इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट जो भी हो. उर्दू लैंग्वेज जो है वो ज्यादा जोर डालती है कॉन्टेक्स्ट पे, इसलिए जब आप ट्रांसलेट करते हो उर्दू में तो सेम आता है, आई ऑलमोस्ट एट द एंटायर चिकन और आई एट ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन, इसकी लिटरल ट्रांसलेशन सेम होगी हमेशा उर्दू में, लिखी हुई ट्रांसलेशन, मगर उसकी कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशन जो होगी वो बहुत डिफरेंट होगी. जैसे ये है ना, आई एट ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन, इसका मतलब है कि मैं पूरा चिकन खाने की कोशिश थी मेरी, मगर मैं एक पीस भी नहीं खा पाया. इसका ये मीनिंग बनेगा, कॉन्टेक्स्ट इसका ये हो गया. लेकिन आई एट ऑलमोस्ट द एंटायर चिकन मतलब मैंने चिकन अच्छे से खाया, और अगर मैं हिसाब लगाऊं कि कितना खाया तो वो एक पूरा चिकन बनता है. सो ये मॉडिफायर्स और स्पेशली मिसप्लेस्ड लिमिटिंग मॉडिफायर्स का किस्सा है, इसको हम अब नेक्स्ट डैंगल पढ़ेंगे. लेकिन अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है, प्लीज लेट मी नो.
आज हम इतना ही रखेंगे. So, is there any question from you guys? किसी को पूछना है कुछ? No, sir. Okay, thank you. You have been very wonderful once again. बड़ा अच्छा लगा आपको पढ़ाकर. आज तो खैर कम बच्चे हैं because मैं भी लेट हो जाता हूँ ऑफिस के काम की वजह से. मैं पुराने सेशंस नहीं ले पाया. But still, we shall meet in the next session and in the podcast session this time in 30.1 session we will arrange a psychologist जो कि body language के ऊपर एक session देंगे. The psychologist is Dr. Mohsin Ahmed Khan. I know him very well. वो एक सेशन देंगे and after that we have other sessions as well. So keep the good work, guys. Take good care of yourself. Bye bye everyone. Thank you.